कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। संसद के बजट सत्र का समापन हो गया। दोनों सदनों की कार्यवाही 4 अप्रैल 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 31 जनवरी 2025 को बजट सत्र शुरू हुआ था। बजट सत्र की उत्पादकता 110% से अधिक रही। सत्र के दौरान दोनों सदनों से 16 बिल पास किए गए। राज्यसभा के 267वें सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि बजट सत्र में सदन की उत्पादकता 119% रही है। Honorable members, we have come to the conclusion of a very productive 267th session of Rajya Sabha. As we conclude sitting of this session, because technically this session ends when the President takes the constitutional step. I extend my gratitude to each one of you for your active participation and valuable contributions to the enriched discussions and soothing deliberations. The debate and discourse in the House were exemplified by enlightened inputs and varying opinion shades. After a long gap, the House witnessed welcome wit, humor, satire, sarcasm, and repartee, apart from intellectual fusion, while ensuring parliamentary decorum, cross-party collaboration, and legislative rigor. The House engaged in insightful debate on the motion of thanks to the President, the address rendered by her, spanning 3 days with active participation of 73 members. The deliberations on the Union Budget 2025-26 were equally incisive and comprehensive, lasting over 3 days and drawing the considered contribution of 89 members. Besides, the House held substantive discussion on the working of 4 key ministries of the government. On the Union Budget 2025-26, we had lively interaction between the Finance Minister and the former Finance Minister. That was absolutely soothing to us. As usual, they agreed to disagree. The introduction of as many as 49 private members' bills in this House needs a special mention. The concern of the members for private member bills is taken note of by me, and I will be in touch with leader of the House and leader of the opposition to see that we act more diligently in this direction. Overall, the House functioned for a total of 159 hours, including more than 4 hours after midnight. The productivity of this session stood at 119%. On April 3, 2025, the Rajya Sabha began proceedings and etched its name in the annals of legislative history with an unprecedented sitting from 11 a.m. on that day until 4:02 a.m. the following day. That is, this day, the longest in its history. This would send a very great message to the people at large and enhance belief in this great institution. During this marathon sitting, the House passed the transformative Waqf Amendment Bill 2025, bringing transparency and accountability to Waqf property management while modernizing legacy systems and upholding principles of equity and justice. I extend my sincere gratitude to the Honorable Deputy Chairman
Shri Harivansh ji, his wise counsel, has always been a great asset to me. I extend gratitude also to the vice chairpersons, House and opposition leaders, the Minister of Parliamentary Affairs, party leaders, and all the honorable members for their invaluable assistance and cooperation in conducting these proceedings. I greatly recognize and acknowledge the diligent efforts of the Secretary General and the staff for having engaged in smooth functioning of the House, working long hours. Why should not have it come? There is no house that. No important ministers. The House also had the occasion to see presence of the Honorable Prime Minister when in this House. The session will be remembered This house, for its historic legislative accomplishments this house is also important. and spirit of unity that prevailed. You should reply. It stands as a defining moment in India's parliamentary journey, a powerful reminder of what can be achieved through dialogue, perseverance, and shared purpose. The Rajya Sabha has once again set the democratic standards worth emulation by others. Honorable members, our future sittings will see announcement of these democratic values getting blossomed. जय हिंद। बजट सत्र में लोकसभा की 26 बैठकें हुईं। कुल उत्पादकता लगभग 118% रही। इस दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, आम बजट पर चर्चा हुई। इसके अलावा सदन में कई विधेयक पेश और पारित किए गए। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के चौथे सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये सत्र 31 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 26 बैठकें की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर 173 माननीय सदस्यों ने भागीदारी की। इस प्रकार केंद्रीय बजट पर चर्चा में 169 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पूरे स्थापित किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 3 अप्रैल 2025 को शून्यकाल में 202 सदस्यों ने लोकमत के विषय सदन में उठाए, जो अभी तक लोकसभा के अंदर अभिलंब लोकमत के प्रश्न उठाए गए का रिकॉर्ड है। माननीय सदस्य, मैं सभी सदस्यों को और सभापति तालिका में शामिल अपने साथियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री को, प्रतिपक्ष के नेता, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों तथा लोकसभा सचिवालय के महासचिव, सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं संबद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सबका धन्यवाद देते हैं। बजट सत्र के दौरान देश के संसदीय इतिहास में राज्यसभा के नाम नया रिकॉर्ड बना। सदन की कार्यवाही 3 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4:02 तक चली। वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में 14 घंटे से अधिक और राज्यसभा में लगभग 17 घंटे तक चर्चा हुई। लोकसभा में 3 अप्रैल को तड़के 3 बजे तक और राज्यसभा में 4 अप्रैल सुबह 4 बजे तक कार्यवाही चली। इस प्रकार से एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। इससे पहले कभी किसी विधेयक पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है। बजट सत्र का पहला हिस्सा
31 जनवरी 2025 से शुरू होकर 13 फरवरी तक चला। बजट सत्र के पहले भाग के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कुल 9 बैठकें हुई थी। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुई। पूरे बजट के दौरान कुल 26 बैठकें हुई। बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में 11 विधेयक पेश किए गए, जिसमें 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा में था। संसद के दोनों सदनों में पारित और लौटाए गए विधेयकों की कुल संख्या 16 रही। वर्ष का पहला सत्र होने के नाते राष्ट्रपति ने 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 17 घंटे 23 मिनट चर्चा हुई। राज्यसभा में 21 घंटे 40 मिनट तक चर्चा की गई। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री के जवाब के बाद प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा हुई। इस पर लोकसभा में 16 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई और राज्यसभा में 17 घंटे 56 मिनट तक चर्चा हुई, जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। बजट सत्र के दूसरे भाग में लोकसभा में रेल, जल शक्ति और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया गया। आखिर में बाकी मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों को 21 मार्च को सदन में मतदान के लिए रखा गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 21 मार्च को ही लोकसभा में पेश, विचार और पारित कर दिया गया। वित्त विधेयक 2025 लोकसभा द्वारा 25 मार्च को पारित किया गया। वहीं राज्यसभा में शिक्षा, रेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने केंद्र के संबंध में वर्ष 2024-25 अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम बैच, मणिपुर राज्य के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों और वर्ष 2025-26 के लिए मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक को 18 मार्च को चर्चा करके लौटा दिया। केंद्र की अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 2025 को राज्यसभा द्वारा भी 27 मार्च को चर्चा के बाद लौटा दिया गया। प्रमुख विधेयकों की बात करें जिन्हें संसद की मंजूरी मिली, उनमें वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक और बैंकारी विधियां संशोधन विधेयक समेत कई विधेयक शामिल हैं। संसद ने मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प को भी दोनों सदनों से मंजूरी दी गई। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।